ये मान ली है कि हमारा श्रेष्ठ टाइम आ चुका है, अब वो घरे घरे दुआरे दुआरे खाना पीना अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन दीदी ये डीम सप्लायर कौन है, जरा खबर बताइए ना। ये डीम का सप्लाई जो दे रहा है, आपका भतीजा झारखंड से लाया है जिस आदमी को, उससे कितना पर सौदा हुआ है। सरकारी सब्सिडी आपका हमारा पैसा देकर अपना बाबाई लूट रही हैं कि हम 5 रुपया में खाना खिला रही हैं। दीदी अगर सही मानों में दीपंकर की बात के अनुसार कोरोना के समय में अगर आप लोगों को खिलाती तो कोई आपको गाली नहीं देता, कोई आपको जय श्री राम नहीं करता। ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत है कि उनको, मैं कल उनका एक वक्तव्य सुन रहा था कि बोल रहे थे कि शुधु जय श्री राम बोला है, आरो किछु बोला है। तो मैं बोलता हूं कि क्या बोला, सारा मीडिया टीवी एक एक बात, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर कहीं जाते हैं तो हर चीज का वीडियोग्राफी होता है, हर चीज का। ऐसा हाल है कि आप 1 सेकंड सांस भी लेंगे ज्यादा तो उसको भी उसमें वीडियोग्राफी हो जाती है। मैं वहां खुद उपस्थित था और एकदम सामने की रो में मैं बैठा था। इसके सिवा कल बहुत सारे लोगों ने टीवी में देखा होगा, वो बोल रही थी कि आर किछु बोला হয়েছে। तो दीदी आर किछु बोला হয়েছে, কি বলা হয়েছিল এটা এবার আপনি বলে দিন। জয় শ্রীরাম তো কিছু লোক বলেছিল, এটা আমরাও শুনেছিলাম, বাদ বাকি আর কি বলা হয়েছিল। আর আপনি যে বলেছিলেন এটা আমি বলে দিই, আপনি বলেছিলেন আমার অপমান করা হয়েছে, আমাকে ডেকে আমাকে অপমান করা হয়েছে। আচ্ছা দিদি বলুন তো, ওখানে জয় শ্রীরাম বলা হয়েছিল, পাশ থেকে কেউ আল্লাহ আকবার বলতো, আপনার কি কষ্ট হতো? আপনি উঠে পালিয়ে যেতেন? না, পালাতেন। আমার জন্য যেরকম আল্লাহ আকবার গালি নেই, আমার জন্য জয় শ্রীরামও গালি নেই। কেন, আমরা যে মানুষ আছি, আমরা যে দল আছে, আমাদের দল আইডিওলজিতে চলে। আমাদের দল আপনার আমার ইচ্ছায় চলে না। আজকে আমি যদি ইচ্ছা করি যে এখানে রাজকুমার যাদবজি আছেন, তাকে আমি এই করে দেবো, আমি পারবো না। আমাদের দল একটা সামূহিক ডিসিশন হয়, সেখানে আমাদের দলে কোথাও বলা নেই कि যারা যে আমাদের দেশের মধ্যে 130 কোটি মানুষ যেখানে বসবাস করে, সব ধর্মের মানুষ বসবাস করে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস। দিদি আপনার লজ্জা হয় আপনি মুসলিম তুষ্টিকরণের কথা বলেন, আর আপনার বাড়ি অপোজিট সাইডে যে ওই আদিগঙ্গা বলেও লজ্জা হয়, গঙ্গার নাম চলে আসছে, একটা ড্রেন আছে, সেই ড্রেনের মধ্যে কারা কালকে নেমেছিল, কারা কালকে প্রতিবাদ করছিল যারা মাদ্রাসাতে আপনি ভাউতা দিয়েছেন कि আপনি 2000 না 4000 মাদ্রাসাকে আপনি সেকশন দেবেন, তারা দিচ্ছিল। আপনার লজ্জা হবে? আপনি শুধু সেই মানুষগুলোকে, সেই মাইনরিটি মানুষগুলোকে ভাউতা দিচ্ছেন, সেই মানুষগুলোকে আপনি ভুল বুঝাচ্ছেন। আজকে এই সভা অর্গানাইজ করেছে সাহিদ, ও একটা মাইনরিটি ছেলে, ও তো বহুত দিন ধরে আমাদের সঙ্গে দল করে, যেদিন থেকে আমরা বিজেপি করি সেদিন থেকে করে। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমাদের দলে ওকে দেখে কেউ এরকম আছে যে বলে কি তুমি আমাদের দলে আসো না, বা আমার কথা শোনো না, বা আমাদের করো না। আজকে ভারত মাতাকে যদি ফুল দিচ্ছে তো ভারত মাতাকে তো দিচ্ছে, এটা তো না কি পাকিস্তান মাতাকে দিচ্ছে, তো ভারত মাতাকে দিচ্ছে। তো ভারত মাতাকে দেওয়ার অসুবিধাটা কোথায় আছে? আপনি পশ্চিম বাংলাকে একদম ভাগ করে দিয়েছে, একদম কি বলা যায়, ছুরি দিয়ে কেটে দিয়েছে। কিন্তু যাকে আপনি কেটে আলাদা করলেন, তার জন্য কোটি কোটি টাকা যে বরাদ্দ আসছে কেন্দ্র সরকারে, তাদের উন্নয়নে, তাদের ডেভেলপমেন্টের, আজকে মাইনরিটি, এসসি এসটি, আজকে আপনি জানেন দিদি, আপনার এই অর্জুন সিং সোশ্যাল জাস্টিস ইনভারমেন্ট কমিটি আমি মেম্বার আছি। লোকসভা যে একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি হয়,
ভারতবর্ষে এসসি এসটি মাইনরিটি যে মানুষ আছেন তাদের উন্নয়নের ব্যাপারে ওই কমিটিতে সব তথ্য থাকে। ভারতবর্ষে এসসি এসটি কমিউনিটি ছাত্রদের ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস তৈরি হয়েছে। কোটি কোটি টাকা আপনার পশ্চিমবাংলায় এসছে, কয়েকশো কোটি টাকা। একটা দিদি আপনি দেখিয়ে দিন छात्रावास আপনি তৈরি করেছেন। एक ठो छात्रावास आप तैयार किए हैं, एक ठो दिखा दीजिए। जो भी छात्रावास है बंगाल में कांग्रेस के जमाने में बना था और उसके बाद आपने एक भी छात्रावास नहीं बनाया। बहुत सारे हमारे दयालु लोग जो मारवाड़ी लोग हैं, उनके समाज है, उन लोगों ने छात्रावास बनाकर कलकत्ता में रहने की व्यवस्था की। या बहुत सारे छात्र कलकत्ता में जाकर पढ़ते हैं, एक भी दिखा दीजिए। जबकि स्पष्ट है ममता बनर्जी के पास माइनॉरिटी और एससी एसटी कम्युनिटी के लिए छात्रावास, एससी एसटी के लिए जगजीवन राम छात्रावास का नाम देकर बनाया गया, करोड़ों करोड़ रुपया बंगाल में आया। और माइनॉरिटी के लिए आप यहाँ, जब मैं तृणमूल कांग्रेस में था, माइनॉरिटी के 2 छात्रावास के लिए मैंने सैंक्शन करा के लाया था। आप बना पाए? आपने बनाया? नहीं बनाया। एससी एसटी कम्युनिटी का मैंने जगह भी अलॉट कराया था, आप वो पैसा आप लोग अलॉट ही नहीं कर पाए। आज एससी एसटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, आज एससी एसटी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आज म्युनिसिपैलिटी में डी ग्रुप में जहां एससी एसटी कम्युनिटी का जगह था, उसको आपने धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में चले गए। वहां आज सफाई कर्मचारी, सिर्फ यहां नहीं, पूरे बंगाल में सफाई कर्मचारी का आज के डेट में नियोग नहीं हो रहा है। प्राय 5.5 लाख वैकेंसी पड़ी हुई है। और आप पश्चिम बंगाल में आपने जिस तरह से पूरा सिस्टम को क्लब्स कर दिया है, ये बंगाल का एक एक जनता, एक एक लोग इस बात को समझ रहे हैं। एक एक आदमी को पता है कि किस तरह से आपने बंगाल में अपने और अपने भतीजे के लिए पूरे बंगाल के सिस्टम को खत्म कर दिया। आज कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसा नहीं देंगे, एडमिशन नहीं होगा। आज आप घड़ियाली आंसू बहा रही हैं माइनॉरिटी के लिए। मैं ज्यादातर समय दक्षिण 24 परगना में आजकल देता हूँ। दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा उम्फान में वहां साइक्लोन आया था, सबसे ज्यादा इफेक्ट वाला जगह है। लोगों का ताड़ के पत्ता से घर है, ताड़ के पत्ता से। प्लास्टिक, बड़ा मुश्किल से वहां लोग रहते हैं। 90% माइनॉरिटी के लोग, 90%। आज उनके हक का पैसा आपके कैडरों ने ले लिया, आपके भाइयों ने ले लिया। करोड़ों करोड़ रुपया दीदी बोलती हैं तो भूल करे चले गए। तो भूल करे हमारे मास्टर साहब के अकाउंट में क्यों नहीं चला गया? ये प्रद्युत बाबू है, उनके अकाउंट में क्यों नहीं चला गया? शाहिद है, उसके अकाउंट में क्यों नहीं चला है? सुरेश मास्टर साहब है, इनके अकाउंट में क्यों नहीं चला गया? भूल करके खाली दीदी के भाइयों के अकाउंट में क्यों चला गया? दीदी उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है, कोई जवाब उसके पास नहीं है। आज पूरे बंगाल के अंदर जो लूट मचा हुआ है, उसका नेतृत्व सरकार दे रही है। पूरे सरकार के देखरेख में ये लूट मचा हुआ है। चाहे वो ममता बनर्जी कहिए, चाहे उनका भतीजा कहिए, उनके देख रेख में ये लूट कायम हुआ है। जो जहां है वो लूट कर रहा है, ले रहे हैं। अगर कानून के तहत वहां डेवलपमेंट के लिए दिया जाता तो एक बात रहता, लेकिन डेवलपमेंट तो छोड़ दीजिए, अपने स्वार्थ में सरकारी जमीन को अपने स्वार्थ में यूज किया जा रहा है। आप देखिए आपके यहाँ के सामने, यहाँ एक बरगाछ हुआ करता था, सरकारी जमीन है, उसको काट के वहां घर बना। तो क्या सरकार आपकी है जब तक, तब तक तो है, और जब सरकार जाएगी तो इस तरह के गलत कामों को हम लोग करने देंगे या रहने देंगे? नहीं देंगे। आज सुअरमारी में डेवलपमेंट बोल के कुछ था ही नहीं, हम लोगों ने घर बनाया, उसके बाद कुछ बना। जब मैं वहां था
लड़ाई झगड़ा करके सब पैसा लाता था और काम करता था। अभी क्या हालत है? अभी हालत ये है कि हम लोग जब से हमारे मास्टर साहब बता रहे थे 19 जनवरी 2019 में मैं भी उस मंच पे बैठा था और मैं मंच से देख रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह का नौटंकी हो रहा है। और आप हो सकता है विश्वास ना करें, उसी दिन मैं मंच से उतरने के बाद ये तय कर लिया था कि अब इस पार्टी में मैं नहीं रहूंगा। 19 जनवरी 2019 को उसी दिन मैंने इस बात को तय कर लिया था कि इस पार्टी में मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि एकदम से ये पार्टी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिणित हो गई। हमारे पूर्व वक्ता ने जिस बात को कहा मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, एक ही बात कहूंगा, ज्यादा समय आपका लूंगा भी नहीं, बाजार का समय है। पूरे भाटपाड़ा में आप टीएमसी का नेता खोजिए तो कौन कौन नेता है, कौन कौन नेता है। अरे हम लोग भी पार्टी किए थे, जिसका जो औकात था उसको वहीं रखते थे, उस औकात को बढ़ने नहीं देते थे। और एक भी गुंडा या तो शहर के बाहर रहता था या जेल के अंदर रहता था। जब हम लोग भी सरकार में थे, हम लोग इस पार्टी में थे, तृणमूल कांग्रेस में थे, तो हम लोग यही देखते थे, गुंडा विहीन भाटपाड़ा था। आज जाइए ना तो घर बनाइए, छोड़ दीजिए वहां, नया बाजार में घर बनाइए, देखिए क्या हालत है। नया बाजार में घर बनाइए, क्या हालत है। बिना पैसा दिए हुए जो अपना घर बना रहा है उसको भी पैसा देना, जो अपने घर का डेवलप कराना चाहता है उसको भी पैसा देना। हालत ये है कि आप बिना पैसा दिए म्यूनिसिपैलिटी में प्लान सेंक्शन नहीं होता, बिना पैसा दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर सेंक्शन होके आया था वो घर भी नहीं मिल रहा। एकदम खुलेआम वहां पैसा का बाजार खुला हुआ है। और चेयरमैन का तो हालत है जैसे उसको क्या बोला है, शिखंडी बोलना भी अपराध है, उससे भी अगर कुछ नीचे में है तो उसका वो हालत हो गया। जो जाता है वहां अपना हिसाब के लिए पहुंच जाता है। और पुलिस के भरोसे पर ही म्यूनिसिपैलिटी और सरकार चल रही है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तुम्ही के जा आछि आमादेर जन्य तुमरा आछो। आज ये हालत है कि पुलिस पूरी सरकार को चला रही है, लेकिन उसका भी टाइम अब शेष के तरफ। अभी कुछ दिन पहले सुरेश जी हमारे कुर्मी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है 7 नंबर वार्ड में, रणवीर सिंह, उनको पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? दोनों का उम्र कम से कम 50 से 60 के बीच है। बोले ये बम चला। बेचारा लोग बम देख के भाग जाता है और बोलते हैं बम चलाता है, और रोज उसके नाम पर केस दे रहा। अब बोल भी रहा है कि कोड़ा नहीं भाई, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते दिन देखो ना हमरा की करছি, खुद बोल रहा है वो लोग। तो ये हालत है पश्चिम बंगाल का, जहां शासन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुशासन चल रहा है, शासन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी चल रहा है। पहले एक समय था कि भाटपाड़ा गुंडों के नाम से जाना जाता था कि अमुक गली वो फलनवा के गली है, अमुक वो फलनवा के गली है। फिर वही हाल हो गया, बड़ा मुश्किल से उसको ठीक किया गया था। घबराइए मत, उस समय तो करीब 2-4 साल लगा था, इस बार 2-4 महीना नहीं लगेगा गुंडा भाटपाड़ा को फिर से निर्माण करने के लिए। आप यहाँ सही आदमी जो लोग भी हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इतना बड़ा महासमुद्र है कि इसमें इतना काम करने का जगह है, भलाई करने का जगह है कि कहीं से किसी का कोई टकराव नहीं है। यहाँ मंडल प्रेसिडेंट है और भी मंडल प्रेसिडेंट है, हर लोग बूथ के कर्मी हैं, हर लोग अपना काम के चक्कर में रहते हैं कि हम कैसे लोगों के लिए काम करें। आज पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप देख लीजिए, छोटा सा एक घटना घटा है, पूरी पार्टी हिल गई है। जिस दिनेश त्रिवेदी जी को तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ प्रार्थी बनाया और यहाँ से एमपी भी रहे, मंत्री भी रहे, हमारे खिलाफ, मैं उनके खिलाफ लड़ा, हमारे खिलाफ वो नहीं, लेकिन मैं कहता हूं मैं तो दिनेश त्रिवेदी के खिलाफ लड़ा ही नहीं, मैं तो लड़ता था ममता बनर्जी के खिलाफ। जिस दिन राज्यसभा से उनको राज्यसभा से भेजा गया, वो जब
रिजाइन दे के जैसे निकले मैंने उनको फोन करके कॉन्ग्रेचुलेशन जाना। मैंने उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है, वेलकम टू बीजेपी पार्टी। अगर आप आते हैं तो एक ऐसी पार्टी है जहां किसी का काम करने में कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि आपको भला करना हो। और आपने सही समझा है कि तृणमूल कांग्रेस में आप जैसे लोगों का दम घुट रहा है। अब ममता जी क्या जवाब देंगी आप बैरकपुर की जनता को? बोले तो आपके पास मुंह है? आपके पास जवाब देने का शब्द है? आज दिनेश त्रिवेदी जी खूब भालो लोग बोलते हैं कि हमारा दम घुट रहा था। तो खराब लोग तो मैं था, मैं अगर बोला तो क्या खराब बोला? अच्छे लोग तो बोले कि हमारा दम घुट रहा था, तो मैं तो खराब आदमी था, तो मैं तो बोला। इसका मतलब मैं पहले समझ गया, हालांकि 19 महीना 18 महीना पहले समझा, 19 महीना बाद समझे, लेकिन समझे। और बंगाल में हर लोग इस बात को समझ रहा है, ये पार्टी चंद समय इसका बच गया है, चंद दिन बच गया है, चंद घंटा बच गया है, और एक तो फिर जोकर को ले आना शुरू किया। मैं तो तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे कहूंगा कि कम से कम आपकी तो चलती नहीं है, मुझे मालूम है। मैं तो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का घर के सामने जब चेयर नहीं हुआ करता था तब से मैं उस पार्टी को किया हूँ। ममता बनर्जी का भला बुरा सब मैं जानता हूँ, कितना भलाई की, कितना बुराई की, क्या क्या की बंगाल में, मुझसे ज्यादा शायद ममता बनर्जी को ही पता होगा और किसी के बीच में पता नहीं। तो फिर वो जोकर को यहाँ ले आना शुरू किया। क्या उससे बढ़िया एक भी जोकर आप लोग में पास नहीं है? जोकर का काम है हंसाने का। जोकर आ रहा है, फिर आपके बीच में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, और कल जहर जब ज्वालामुखी बनेगा तो आप कहेंगे कि वाह, ये तो बीजेपी के लोग ये सब ठीक काम नहीं करता। लेकिन जो जहर बो रहा है, एक भी आदमी का दिमाग नहीं खुल रहा है कि कौन सा जहर बो रहा है, कौन सा जहर फिर से फाट पड़ा में आ रहा है। बोलते हैं बोल रहा है कोई कुमड़ा लेके खेला हो गया। अरे भैया, खेला 2019 में हो गया, बाकी कहाँ है खेला? भारतीय जनता पार्टी जहां 2 से 18 पर आ गई, अब 2-4-10 दिन में देखिएगा 18 से 22 पर चली जाएंगी। तो आप अपना सोचिए, आप खेला होवे। अरे एक भी खिलाड़ी दिखाइए तो, सब जुआरी है, कोई खिलाड़ी दिखाई नहीं देता। एक भी तृणमूल कांग्रेस में खिलाड़ी हमको दिखाइए तो, जो खेला खेल रहा है। कोई सौगोत्रा है 82 बरस, कौन सा खेला खेलेंगे? सुब्रतो मुखर्जी 85 बरस, कौन सा खेला खेलेंगे? मदन मित्रो 75 बरस, चला नहीं जाता है, खेला खेले, सुबह से रात तक दारू पिए रहता है, तो बोलता खेला खेले। अरे क्या खेला खेलेगा भाई? खेला खेलने वाले हमारे नौजवान हैं जो खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, पिंग पोंग बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये जो अभिषेक बनर्जी है, आज सबसे बड़ा नेता बना रही है ममता बनर्जी। हम लोग के सामने हाफ पैंट पहन के पिंग पोंग बॉल खेलता था और बोलता था काकू तू सोरे जा। आज ममता बनर्जी बोलती थी कि इसको नेता माना। कैसे नेता माना? जिसका नाक कभी दबाने से दूध निकलेगा, वो आदमी को ममता बनर्जी बोलती है कि बंगाल का नेता है। ऐसा बंगाल का नेता को बंगाल की जनता ने नकार दिया है, और उसका नमूना 2019 में आप देखे होंगे और 2021 में भी आप देखेंगे। खेला होवे एक जो नारा लगा के लोगों में मजा ले रहे हैं। तो जब लोग खेला खेलते हैं ना, तो ममता बनर्जी जैसा हाल होगा कि बोलती थी कि एक्टिव सीट पावे ना। अभी भी बोलती है ना कि 294 में मैं ही लड़ रही हूँ। दीदी खेला तो हो गए, अब खेला हो गए 294 तो ये अपनी हेरे जाए चलो अपनी सब जगह खेलছে তাহলে খেলাড়ি আপনি গোলকিপার আপনি বলছেন কি খুব আমি ভালো গোলকিপার। দিদি গোলকিপাররা কি গোল করে না, গোলকিপাররা গোল খায়, এটা সবাই জানে যারা খেলাধুলা করে। गोलकीपरরা गोल खाए, गोल करे ना। तो बहुत समय हो गया, आप सभी लोगों को अभिनंदन है, नमस्कार है। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर जो चाय पर चर्चा में आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की